Hello guys and welcome to my YouTube channel. So today my topic of discussion is kinematics. So why it is important to read this topic? So this topic is because this topic is important for your board exam as well as for competitive exam like IIT, JEE, NEET and other exams. Okay, so it is very much important because it is the scoring portion for all exams. So due to this it is important to read this topic. Now before moving further to the kinematics, let's understand first what is motion. So if motion is a particular condition of any object which tells us whether the object is in rest or not. If it is in rest, then this means that it is not moving. If it is not moving, we can say it is at rest. But it is not at rest, then we can say it is moving. It means it changes position with respect to time. So the motion is definitely the change in position, change in velocity of any object with respect to time. If any object is changing its position with respect to time, then we can say it is in motion. Now, as we know, nothing is in the rest in the universe, everything is moving. Then why we are using this word rest here if everything is moving? We are at rest and in motion with respect to other person only, with respect to other object only. So when we compare, how kinematics came into play here? When we compare one object's motion with respect to other, then kinematics play an important role here. Kinematics came into existence here. But and if we don't want to go in deep how this motion came into play, we only want to compare an object's motion. We only want to compare here. So in kinematics, we studied the change in position, change in velocity of any object with respect to time. If any object is changing its position with respect to time, then we will use kinematics there. We will use kinematics formulas there, kinematics laws there. Okay, so is there any proper method to compare or proper scientific way to compare an object motion with respect to other? Yes, there are definitely some scientific ways. So one scientific way is to attach a frame of reference to one person for comparison of its position, velocity and its motion with respect to other one. Now, what is frame of reference? So, frame of reference is nothing. It is definitely a set of coordinate axes used to represent the change in position of any object over time. So, if frame of reference is a set of coordinates. Set of coordinates means x, y, z axis. X, y, z axis, axis with its origin at 0, 0, 0 position. Okay, so if we attach set of coordinates with set of coordinate to a person, and then we compare its motion, its velocity with respect to other one, then it is a proper scientific, it will be a proper scientific way to compare one object's motion with respect to other one. Okay, so for example, there is a very good example for understanding what is frame of reference, and how we can compare one object's motion with respect to other one. So हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं किस तरीके से। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है जो आप अपनी डेली लाइफ में देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। ओके, सो आज ये हम एग्जांपल देख सकते हैं। जब आप कार में होंगे या ट्रेन में मूव करते हैं, एक एक वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए आप कार में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं और एक सामने ही आपके दूसरा पर्सन बैठा है। तो अब मैंने क्या किया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, या फिर मैं ट्रेन को मान लूँ कि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक पर्सन बाहर खड़ा है उसके लिए एक अभी मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले देखती हूँ कि आपके जो सामने वाला पर्सन है, यदि आप उसे देखेंगे तो वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। बट एक पर्सन जो कि ट्रेन से बाहर है,
वो उस पर्सन को देखेगा या आपको देखेगा, तो आप उसके रिस्पेक्ट में क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो यहाँ पर यदि मैं एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक ट्रेन से अटैच कर देती हूँ जो कि वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, या आपसे अटैच कर देती हूँ क्योंकि आप भी ट्रेन के साथ वी वेलोसिटी से ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट बाहर वाले के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो मैं ट्रेन से एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर देती हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक जो बाहर पर्सन है उससे एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सिस अटैच कर देती हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक हमारे पास एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि टाइम के साथ क्या है, जो कि टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वो रेस्ट पे है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, वो बाहर वाला जो पर्सन हमें देखेगा तो हम उसे दिखाई देंगे बी वेलोसिटी से मूव करते हुए, बट हम एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरे पर्सन को यदि देखेंगे जो कि हमारे सामने ही है, तो वो हमारे रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट पे होगा। आप इसको समझने के लिए एक घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक बॉक्स लीजिए, उसमें आप पानी भर लीजिए, और एक धीरे धीरे एक कम वेलोसिटी के साथ क्या कीजिए, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उस बॉक्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। तब आप क्या करेंगे, पानी का जो मोशन होगा, वाटर का जो मोशन होगा, उसमें आप देख पाएंगे डेफिनेटली डेफिनेटली कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बट जब आप उसे क्या करेंगे, एक एसलरेशन देंगे आप उसको, मीन्स टाइम के साथ आप उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते रहेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर होगा, आप उसके वाटर होगा वो आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से चेंजेस होगा वाटर की मोशन में। तो ये यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, खुद से ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर करके। अब यहाँ पर हम क्या और भी क्या बोल सकते हैं, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेफिनेटली यदि आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो उसमें एसोलेशन होगा, बट यह एसोलेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, मोशन जो होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, अब ये नॉन एसोलेटेड यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो न्यूटन्स लॉ वहाँ पे क्या होंगे, डायरेक्टली वैलिड नहीं होंगे। जब हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली वैलिड नहीं होते हैं या फिर वैलिड ही नहीं होते हैं, उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अब हाँ, हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अभी ये हमारा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जैसे हम इस फ्रेम से ये ट्रेन जो है हमारी मूविंग करती हुई मोशन में, तो उससे हम ये अटैच कर सकते हैं। भी यहाँ पर क्या है हमारा, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अर्थ से अटैच कर देते हैं। जब एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आप अर्थ से अटैच कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, और आप अपने मोशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हम क्या होंगे, अर्थ क्या है, अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे भी, साथ ही साथ सन के अराउंड में रिवॉल्व भी करती है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस इसमें जाने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आखिरकार होते क्या हैं। तो हम टाइप्स ऑफ फ्रेम मीन्स हम फ्रेम्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं फर्दर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किन बेसिस पे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मीन्स एक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हमारा क्या है, एस्लेरेशन या तो जीरो है या फिर कांस्टेंट है, और दूसरा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कि एस्लेरेशन हमारा जीरो है और कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ इसमें क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हमने लास्ट स्लाइड देखी थी तो उसमें देखा था कि अर्थ जो है हमारा वो किस टाइप का फ्रेम हम उसे बोल सकते हैं, इनर्शियल या फिर नॉन इनर्शियल। तो अर्थ हमारा एक रोटेटिंग फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज होगा, टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए अर्थ जो है हमारा क्या होगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ओके, सिमिलरली हम गैलेक्सीज की बात करते हैं अपनी यूनिवर्स में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गैलेक्सीज भी हमारी क्या करती हैं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ रोटेशन होता है, चेंज मोशन में रहते हैं, चेंजेस होता है टाइम के साथ उनके एक्सीलरेशन में, तो हम उन्हें भी क्या बोल सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, so thank you very much, and subscribe my YouTube channel for further updates.